morning. Myself, Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Faculty of Homeopathy Science. In the last lecture, we have discussed about the concept of health, what actually health is, what are the determinants of health, what are the dimensions of health, what are the various indicators of health. In this lecture, we will be talking about the concept of disease. What is the definition of disease and how disease develops? What is the process of the disease development? All this will be discussed in a brief in this lecture. What is disease? Disease is nothing but alteration in the state of health. Disease is a condition in which the body health is impaired, departure from the state of health, an alteration of the human body, interrupting the performance of vital functions. The normal vital functions that are functioning normally is interrupted. This is known as disease. A condition of the body or some part or organ of the body in which the functions are disrupted or deranged. This is simply disease. Disease is again a maladjustment of the human organism to the environment. Disease is any deviation from the normal functioning or state of complete physical or mental well-being. In health, we have studied that health is nothing but a normal condition of the body. The body function properly, the body organs function properly, all the activities are done normally. And in disease, the reverse happens. Something or the other is deranged, the normal functioning is disturbed. Disease is a physiological and psychological dysfunction. It is related to the body as well as to the mind. Illness. Now, here we will discuss about disease, illness, and sickness. These are three different things. What is disease? It is nothing but the physiological or psychological dysfunction. Illness is a subjective state. Whenever you are ill or not healthy, illness is the internal state what you feel about that disease. You are not well. आपको ठीक नहीं लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ. That is illness. And sickness, what is sickness? Sickness is the days or the duration during which you are not able to perform your function properly. Sickness is a state of social dysfunction, that is a role that individuals assumes when he is ill. Now, what is the concept of causation? What are the various causes of disease? There are various concepts which are given. In the previous lectures, we have discussed about the supernatural theory of disease, the theory of humors, the concept of contagion. We have already discussed. The theory of spontaneous generation was also discussed in the previous lectures. In this lecture, we will move ahead. Here, we will start from the germ theory of disease, although it is discussed earlier, but again, I'll repeat it. The emphasis has shifted from the empirical causes, that is supernatural theory of disease or bad air, to the microbes as a sole cause of disease. Microbes are considered as the causes of disease. Disease agent, man, agent attacks the man and causes the disease. This is the germ theory. Some agent comes to you and causes disease in you. This is the germ theory of disease. Modern medicine has moved away from the strict adherence to the germ theory of disease. जो पहले की जो चीज़ें चलती थी जिसमें सुपरनैचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में बात की जाती थी, उससे आगे आके हम लोगों ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में बात की. इसके बाद भी धीरे धीरे एडवांसमेंट के बाद में और भी चेंजेस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बाद में आए हैं. द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज हैज मेनी लिमिटेशन. क्या क्या लिमिटेशंस हैं? फॉर एग्जांपल, इट इज अ वेल नोन दैट नॉट एवरी एक्सपोज टू ट्यूबरकुलोसिस डेवलप्स टीबी. जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बोलता था अगर एजेंट है, होस्ट है, तो उसकी वजह से डिजीज होगी ही होगी. एजेंट जो है होस्ट पर अटैक करेगा और डिजीज प्रोड्यूस करेगा. लेकिन हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्यूबरकुलर बैसिला सब जगह होता है, होस्ट सब जगह होते हैं, लेकिन सभी लोगों को डिजीज नहीं होती है. इस वजह से जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के कुछ लिमिटेशंस आ गए थे. इसलिए और कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की आगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन, इसमें हमने बताया है कि फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज देयर आर लॉट ऑफ causes that are responsible for the development of a particular disease. This concept was given by Pettenkofer, who proposed that the concept of disease is due to multiple factors. There are new type of diseases, so called the modern diseases of civilization. जैसे कि अब नई नई डिजीजेस आ रही हैं, कई सारी ऐसी डिजीजेस आ रही हैं जिनको हम ना तो जर्म थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही एनवायरनमेंट के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसी वजह से हमने उन्हें मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन में डाला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मेंटल इलनेस. इस तरह की कई सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कि ना तो आप जर्म थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही एनवायरनमेंट को ठीक करके आप उन्हें होने से बचा सकते हैं. इस चीज को आगे फिर से एक्सप्लेन किया है वेब ऑफ कॉजेशन के अंदर. वेब ऑफ कॉजेशन बोलता है देयर आर मल्टीपल कॉजेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज की जब हम बात करते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस,
कोरोनरी हार्ट डिजीजेस के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। हार्ट डिजीज जो हम आजकल कॉमनली देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स में हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गए हैं, उनके कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप इंसान स्ट्रेस लेता है उस वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है उस वजह से हो जाता है, अल्कोहल लेता है उस वजह से हो जाता है, ओबेसिटी एक कारण है, हाइपरटेंशन एक कारण है, हाई फैट डाइट, अगर हाई कैलोरी डाइट कोई लेता है उस वजह से होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेब ऑफ कॉजेशन। The removal or elimination of just one link or chain may be sufficient to control the link disease। ये बोलता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर को, अगर आप एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए कई सारे कारण हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप एक लिंक को भी उसमें से हटा देते हैं तो आप काफी हद तक बीमारी को होने से, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। नाउ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से डिजीज आगे बढ़ती है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, नेचर में किस तरह से डिजीज आगे बढ़ती है। द वे इन विच द डिजीज इवॉल्व्स ओवर द टाइम फ्रॉम अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इट्स प्री पैथोजेनेसिस फेज टू इट्स टर्मिनेशन एज रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज बोलता है कोई भी डिजीज किस तरह से आगे बढ़ती है। प्री पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज डेवलप होने से पहले का फेज, जब एजेंट है तो सही लेकिन आपकी बॉडी में नहीं आया है। पैथोजेनेसिस फेज जिसमें कि वो डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, आपके अंदर आकर सिम्टम प्रोड्यूस करता है। अगर इस केस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो उस केस में क्या आउटकम हो सकता है। देयर कैन बी रिकवरी, जिसमें बॉडी खुद से अपने आप को ठीक कर सकती है। डिसेबिलिटी हो सकती है, कुछ पार्ट काम करना बंद कर दे, या फिर डेथ भी हो सकती है। ये सब चीज हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में पता चलती है। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर नहीं आया, एनवायरमेंट नहीं है, और पैथोजेनेसिस फेज जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ चुका है। नाउ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, इसकी हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज में। ये थ्योरी पहले भी आई थी जिसमें कि हमने बात की थी कि देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। इसमें एजेंट होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए एनवायरमेंट होना चाहिए, जो कि तीनों चीजें एक डिजीज डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। दिस ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर कंबाइनली नोन एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नाउ एजेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर एजेंट फैक्टर? एजेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग और अ फोर्स टेंजिबल और इनटेंजिबल, द एक्सेसिव प्रेजेंस और रिलेटिव लैक ऑफ विच इनिशिएट द डिजीज प्रोसेस। कोई भी ऐसा एजेंट, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, ऐसा जिसे आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसा होता है जिसे आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पर जिसके होने या नहीं होने से, ज्यादा होने या नहीं होने से, दोनों ही कंडीशन में डिजीज हो जाती है। अगर वो ऑप्टिमम रेंज में रहता है तो डिजीज नहीं होती है, कम या ज्यादा केस में डिजीज प्रोड्यूस होती है। अ डिजीज मे हैव अ सिंगल एजेंट और मल्टीपल एजेंट, एक एजेंट हो सकता है और कई सारे एजेंट्स भी हो सकते हैं। देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एजेंट। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जिसमें कि सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्शिया, प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं। न्यूट्रिएंट एजेंट जिसमें कि जो भी न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह आते हैं। फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट्स में हमारा एटमॉस्फेयर आ जाता है, हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें आती है। केमिकल एजेंट्स में डिफरेंट केमिकल्स जिनके हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। इसमें हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, और मेटल्स हो गए, गैसेस हो गई, और भी कई सारी चीज़ें आएंगी इसमें आगे। मैकेनिकल एजेंट, इसमें जब भी कोई इंजरी लगती है, एब्रेशन होता है जिसके वजह से डिजीज होती है, तो मैकेनिकल एजेंट में आता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह इसमें आ जाते हैं। एब्सेंस और इनसफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, इसमें कई सारे हार्मोन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं। एंड देयर आर वेरियस सोशल एजेंट। सोशल एजेंट जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस भी कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ पे कई सारे एजेंट होते हैं। जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं, वो उनकी सोसाइटी में होता ही है, ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उस वजह से जो भी डिजीजेस प्रोड्यूस होती है वो भी सब सोशल एजेंट्स में आ जाता है। Now we have host factors. Human host is referred to as a soil and the disease is the seed. जो होस्ट है वो सॉइल है, डिजीज एक सीड की तरह है जो होस्ट में आके ग्रो करती है। होस्ट फैक्टर्स को 2 तरह फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि एज, सेक्स और एथनिसिटी, ये सब फैक्टर्स आते हैं। कुछ डिजीजेस पर्टिकुलर एज में कॉमन होती है, कुछ डिजीजेस पर्टिकुलर सेक्स में कॉमन होती है, कुछ डिजीजेस पर्टिकुलर एथनिसिटी है जो कल्चर है उसके अंदर कॉमन होती है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स जो कि फैमिलीज में चलती है। बायोकेमिकल लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड यूरिया, ब्लड क्रिएटिनिन, इन सब से पता चलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि पर्टिकुलर डिजीज आपके अंदर रहती है। एंजाइम्स, उनकी प्रेजेंस से कई डिजीजेस का पता चलता है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह है, इससे आपको कई चीज़ों के बारे में पता चल जाता है जो बताते हैं कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ डिजीज है।
सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में एजुकेशन होती है, ऑक्यूपेशन, स्ट्रेस, मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग एक्सेट्रा। ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर अच्छे से एजुकेटेड इंसान रहेगा तो बीमारियां कम होगी, ऑक्यूपेशन अच्छी है, पैसा अच्छा मिलेगा तो डिजीजेस होने के चांस कम है, लाइफ स्टैंडर्ड उसका बढ़ेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा रहेगा, प्रमोशन ऑफ हेल्थ होगी। स्ट्रेस, मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग, ये सब वही फैक्टर्स हैं जो हम कॉमनली देखते हैं जो कि कई डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगेन जो सोशल फैक्टर्स थे उन पर आ जाते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट, आपका किस तरह का लाइफस्टाइल है, लिविंग हैबिट कैसी है, न्यूट्रिशन आप कैसा ले रहे हैं, एक्सरसाइज, यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, बिहेवियरल पैटर्न एक्सेट्रा, ये जो भी चीजें रहती है लाइफस्टाइल, उसकी वजह से जो डिजीजेस होती है वो होस्ट फैक्टर्स में आती है। ना एनवायरमेंटल फैक्टर, जो हमारे एनवायरमेंट है, हमारे आसपास है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, all which is external to the human host, living or non-living, and with which he is constantly in interaction. The environment of the man has been divided into two: physical, chemical, physical, biological और psychological. Physical जो surrounding atmosphere है, biological living organism, and psychological, psychosocial is related to the man and his society. In the next lecture we will be talking about the concept of control of disease. अभी इस lecture में हमने concept of disease की बात करी है बहुत short में. Next हम लोग बात करेंगे concept of कंट्रोल के बारे में। इन दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट concept of disease.